Hi everyone, let us revise lesson number 9, coordination compounds. Okay, let's begin with. Now here the most important thing is, first of all you should know about the coordination compounds. What are coordination compounds? No? And before that there are a few examples what can be included in MCQ. Objective type के questions इसके frame out हो सकते हैं. For example, chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12. Any of these means either of these can be asked कि what are the components, okay, that these are made up of. So these are the coordination compounds of, one is magnesium, chlorophyll. For chlorophyll it is magnesium, hemoglobin is made up of iron and vitamin B12 is made up of cobalt. So remember this from here. And after that, one more thing, variety of metallurgical processes, industrial catalysts and analytical reagents involve the use of coordination compounds. So the application of the coordination compounds will be getting towards the end of the chapter. For the time being, let us proceed with the discovery of these coordination compounds. The Werner was the first person, the one who proposed the idea about the secondary valency, and in fact this secondary valency only is responsible for the formation of the coordination compound. Previously we were aware of only the primary valency. Now he put forward a logic of primary as well as secondary valency. Okay, the primary and secondary valency, always remember what these are. So in short, I'll let you know. One, primary valency and secondary valency. Okay, primary valency is satisfied by counter ions. Counter ions only those which are outside the square bracket. Those are known as, that is known as primary valency. Okay, and ionic bonds are possible. Now you can just put the number, I'm not writing. Ionic bonds, electrostatic forces of attraction are experienced, okay, wherever the primary valency is there. Central metal ion is satisfied by the primary valency via ionic bonds. Now when we come to the secondary one, these are not the counter ions, these are the ligands. Okay, and these ligands, they are inside the square bracket along with the central metal ion, and these are associated with the central metal ion via coordinate covalent bonds. Now fourth one, primary valency is ionizable. Whenever you put this kind of compound in water, then this valency only gets ionized. And here this one, secondary valency, not ionized, non-ionizable it can be, no? Fourth, it is non-ionizable. So you can't detect with suitable tests. No, you can't detect this because this whatever is ligand doesn't furnish gets furnished as ions. Okay, so the last point now, differentiating point that differences that distinguishes the primary valency with the secondary valency is that primary valency, we do not include the primary valency while writing down the geometry or the structure. No spatial arrangement provided, or better to say not included in the spatial arrangement. Means primary valency does not decide the geometry of the compound whatever is being formed. Okay, and the position in geometry is provided to the secondary valency. So whenever you come across some structures that those are tetrahedral, square, planar, trigonal, bipyramidal or even octahedral, then this geometry in this, the positions will be acquired by the secondary valency and it won't be the primary valency. For example, CONH3 whole 6 and Cl3. Okay, this is the primary valency. This just satisfies the charge, residual charge over the central metal ion, and these are known as ligands and these form the secondary valency. So whenever you write the structure, octahedral structure, then you can give the position to NH3 like this. Only NH3 will be utilized while deciding the geometry. The primary valency can be in between, shown like this with the dotted lines, because this is not a part of the geometry. Okay, so 3 Cl are there, I can show like that, but on the basis of the positioning of Cl we won't decide the geometry. Geometry is only just because of
the secondary valency. So this way you can analyze the things and you can come to know about the difference between the primary and the secondary valency. And in fact this was proposed by Werner, he only put forward this. Okay, then let us move to the second page. What is there? Now here conductivity experiments are done. You can see this here. Formulation of cobalt 3 chloride ammonia complexes, and these complexes were studied by Werner only for the first time, isn't it? Now in this table you can see the solution conductivity is given. Now children, though this is of very less importance, but still MCQ can be framed out here. Suppose this kind of compound is given to you and they may ask ki what will be the conductivity corresponding to this. Then since this positive ion is 1 mole and 3 moles of negative ion, so you can write 1:3. Now here the ratio is 1:2. Here 1:1, 1 positive ion, 1 negative ion. So this type of electrolyte, and means this conductivity is always given on the basis of the positive and total number of positive and negative ions. Okay, in electrochemistry chapter also you must have seen, like there it was for NaCl the conductivity will be 1:1. Why? Because Na plus and Cl minus. For CaCl2 it will be 1:2. Positive ion is 1 and negative ion is 2. Likewise you can do, isn't it? So here on the basis of moles it is given as many moles, like the negative ion is having 2 moles, so you are writing 2. Clear? And here metal, this entire thing, coordination entity is 1 mole, so 1 is given. Everywhere coordination entity is 1 only, it is the counter ion that is changing. Fine. So on this also, if it happens to come, like the question is ki write the conductivity corresponding to this kind of formula, then you can easily write. So put a Q here because one question can be framed out from here as well. Fine. Now here are the postulates put forward by Werner. So you can just go through, learn. In case some theoretical question comes where say I don't expect this, still the main postulates proposed by Werner, in fact these were proposed by Werner only. They are about the valencies of primary and secondary valency, the idea about that. Then primary is ionizable, this is satisfied by negative ions because these are the counter ions, isn't it? So likewise I've already told you in the previous page I have introduced this primary and secondary valency, differentiated there, so you can easily check out from there. Okay, now to sum up, theoretical you can read from here, but to sum up I'll let you know. In a coordination compound, I'm writing in short, only abbreviations I'm using. Okay, I don't want to go for a lengthy procedure, this way. Okay, cooperate. CONH3, suppose this is a coordination compound. Since this coordination compound was introduced by Werner only, he studied on this only, so I'm taking the simplest one, this only. Now here, what are terminologies we are going to utilize, I'm letting you know. This is the central metal ion. In case the oxidation state comes out to be 0, then you can call it a central metal atom. Otherwise, in general cases, other than those, in general cases it behaves as ion, so it is central metal ion. These are the ligands. And what type of interaction is there between central metal ion and ligand is coordinate covalent bond. I suppose you all know coordinate covalent bonds means the ligand is providing one pair of electron, a set of electron, and central metal ion is providing a empty orbital for that. So coordinate covalent bond is being framed out here. Okay, and of course these ligands only form the secondary valency. Whenever it is asked ki what is the coordination number, so coordination number is also decided by this only. Remember, secondary valency is decided by the number of ligands, the coordination number is decided by the number of ligands, the geometry is also decided by the ligands only, the number of ligands. Okay, and this is non-ionizable, not to forget this. Okay, when we come to the counter ion, ion is always placed outside the square bracket. So this is the counter ion. Counter ion is satisfied by the primary valency. Okay, and this is ionizable. Gives no idea about the geometry or the coordination
number, it is not included in the geometry. Okay, so this way you can frame out. Now ligands, they may have many dents. Dents means point of attachment by virtue of what they are linked to the central metal ion. Those are known as dents, and on the basis of the number of dents provided by any particular ligand is called denticity. Okay, so monodentate, didentate, one example of each you can learn. EDTA, remember, it is hexadentate. Okay, so that must be given on another page, yet we'll see. Now whenever you have to write the coordination compound on your own accord, then remember the coordination numbers I am helping you out with. Okay, the coordination numbers I am telling you. Whenever it comes to 2 coordination number, this can be satisfied by Ag, Au, silver and gold. When it is 4, can be satisfied by, means you can easily form the compound. So the compound which can have coordination number 4, yeah, the metal what can form coordination number 4, this coordination compound can be copper, it can be of mercury, it can be of platinum, it can be of nickel. Okay, next is coordination number 6. Like you want to put one example to remember, 6 will be formed, yeah, exhibited by platinum compounds. Platinum look can show 4 also and can form the compounds with 6 coordination number also. Platinum, then cobalt, then chromium, iron, all these. Okay, these are having 6. So basically these only you will be utilizing, not more than that. Let us move to another page. हाँ जी, यहाँ पे आए differences between a double salt and a complex. Yes, here. Double salt examples are more salt. It can be potash alum as well. See the formula you can learn, because in MCQ it may be framed out like this only. And whenever these double salts, these are dissolved in water, they furnish ions completely. Okay, they dissociate into simple ions completely when dissolved in water. These are double salts. But when you talk about a complex, it won't furnish all the ions. For example, this is the complex, it won't furnish all the ions. It will furnish only potassium ions and this major one. Okay, it will break from here, since this is the part where it is ionizable. Inside you can't test for Fe, you can't test for C, you can't test for N. Okay, so you can only test for potassium. So this is the basic difference between a double salt and a complex salt. Another type of question that can be framed out here. Look, I'll tell you one question that can be formed. How many ions are produced from the complex? The complex is given to you. Anything. I'm writing once again the simplest one only that I'm carrying on with. Okay, this one. If I ask you in solution, in aqueous solution, how many ions will be furnished by this? A will be 6, B can be 3, 4, C can be 4, D can be 2. Now you can easily see this major one, it will dissociate and form 1 CONH3 whole 6, the entire entity. Okay, this will be there, and 3 Cl negative ions. So you can see 3 negative ions and 1 positive ion together gives you 4. 3 plus 1, 4. Okay, so this way you can easily see it is 4. And had it been CONH3 whole 6 and Cl2, because cobalt can show +2 oxidation state also, in that case it will be Cl2. When we talk about this, it will be 3, 1 this ion and 2 Cl ions. When it is this, it is 4. Okay, so you can be prepared for that also. This kind of question can be easily framed out. Now one more is there. Since we are talking about the ions furnished, so we can easily frame out one more question depending on the conductivity. Look, I'll write one more question here. On the basis of this difference only I can frame out this. Okay, which of the following has highest conductivity? Conductivity is simply decided by the number of ions. The more the ions, the more is the conductivity. This way you have to utilize. So be prepared for indirect questions. Now direct they won't ask you. Children, write the differences, basic difference between a double salt and a coordination compound. Don't be prepared for that. Okay.
दिमाग में हमेशा रखिए, इसको कैसे भी फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, आपको कैसे भी दिया जा सकता है. द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और यहाँ पे दिया हुआ है 2. ओके, एंड द अदर वन इज हेक्सा एक्वा chromium 3 chloride. Okay, C part tetra amine dichlorido cobalt 3 chloride. Yet another option can be capital I was writing diamine chlorido platinum 3 ion. Okay. So here only this entire one ion is there. Discard this. Hexa aqua chromium 3 chloride. You can write the formula and check. No, hexa aqua chromium 3 chloride में 3 1 this coordination compound will be there and 3 Cl negative ions, so together gives you 4. But when you talk about potassium hexacyanoferrate, it is K4FeCN6. okay, this A part I am letting you know. In this 4 potassium ions and 1 this, so together gives you 5 ions. The maximum number of ions are possible here only, so I guess this is the proper answer. The greater the remember always here the fundamental I am letting you know, greater the number of ions liberated, greater will be the conductivity. Okay, so on this fundamental only they can frame out questions, so be prepared even for that. Now here definitions are given, and definitions I have already told you. What you need to remember is something this: central atom or ions are also referred to as Lewis acid. Why? Because this can be put up in reasoning assertion type. Okay, so the reason may be this kind of, or maybe in assertion they are writing this and then they are further providing the reason. So genuine thing you can match their fundamentals. Come up to this. Yes, when we talk about polydentate denticity, I told you beforehand. Ethylene diamine tetraacetate ion EDTA, the charge is 4 negative. Whenever you happen to write this EDTA, please remember this charge also is an important hexadentate ligand. It is having 6 points of attachment, where all 1 and 1, this is 1, another attachment point is 2, then 1 oxygen, this 3, 1 this oxygen, 4, 5, 6. 6 dents are there, 6 points of attachment are there. It can bind through 2 nitrogen and 4 oxygen atoms to a central atom. Okay, so maybe in assertion it is written somewhere ki DTA is hexadentate ligand, and then in reason this is given. So obviously this links this. Be prepared for R and A type of. Okay, chaliye. Now we are talking about chelate also here. Whenever you find any enclosed ring structure, like if metal is there and here NO2 is given, open up, isn't it? Now when we talk about oxalate ion, suppose this oxalate ion, then if this is forming the bond with metal, coordinate covalent bond, O is providing one lone pair to empty orbital of metal, and same way here also. So you can see one enclosed ring type of structure is there. So this type of structure, whenever it happens to come, then it is known as chelate ligand. So oxalate ion I can easily say it is chelate ligand. And एक और चीज़ का ध्यान रखें, वो सारे coordination compounds, those which are having chelating ligands, are always more stable than non-chelating one. ओके, तो अगर मैं NO2 एंड ऑक्सलेट वाले कंपाउंड्स में आपसे कंपेयर करवाऊँ कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ऑब्वियसली गो फॉर द चिलेटिंग वन, ऑक्सलेट वाला. जहाँ कहीं भी एनक्लोज रिंग मिल जाती है वहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है. जो मोनोडेंटेट हैं वो हमेशा कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं. तो जब आप एंड में देखेंगे एक स्टेबिलिटी का एजेंडा, वहाँ फैक्टर्स देखेंगे, तो उनमें से वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी दिस चिलेट रिंग ऑल्सो. ओके, सो चिलेटिंग लिगेंड्स टेंड टू बी मोर
स्टेबल देन नॉन चेलेटिंग वंस। एक टर्म आती है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी वर्ड आ रहा है एम्बिगुअस से, एम्बिगुअस मीन्स अनश्योर, यू आर नॉट श्योर अबाउट। तो ऐसे ही एम्बीडेंटेट माने हैविंग मोर देन वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। एक साथ नहीं, एक साथ में तो पॉलीडेंटेट में आ जाता है। एम्बीडेंटेट मतलब या तो इधर से अटैच होगा या उधर से अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस नाइट्राइटो can attach by N also, can attach by O also, isn't it? So this is ambidentate. Same way SCN and NCS, this is also ambidentate. Okay, CN NC, this is also ambidentate set. Okay, so एग्जाम्पल के साथ में तैयार रहें, डेफिनेशन के लिए भी तैयार रहें। इस पे डेफिनेशन आ सकती है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो। बाकी तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि सेकेंडरी वैलेंसी इम्पार्ट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो रिमेंबर दैट। पॉलीहेड्रन यहाँ पे सारे बन सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है जो जनरली बच्चे छोड़ करके चलते हैं, वो है ये कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन इज डिटरमिन्ड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल आयन। Pi bonds if formed between the ligand and the central metal ion then are not counted for this purpose। हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल CO के साथ जब बनता है तो एक तो बॉन्ड ये वाला बनता है, एक बैक बॉन्डिंग भी हो रही होती है। सो ये बैक बॉन्डिंग काउंटेबल नहीं है। ओके, काउंटेबल जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। बैक बॉन्डिंग जो सिनर्जिक बॉन्ड या कोई कहीं पे पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो वो काउंटेबल नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड्स को कंसिडर करके चलते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। उसके बाद में आप ये ले सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जो सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एनक्लोज मिल जाए वो समझ जाइए कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके बाहर का जो होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर होता है या काउंटर आयन होता है। ये जो काउंटर आयन है ना, जैसे कि 4 Fe6 में आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में K है, तो दिस इज द आयोनाइजेशन स्फीयर। बाहर वाली चीज़ आयोनाइजेशन स्फीयर बिकॉज दैट इट्स आयोनाइज्ड एंड अंदर वाली चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्ट्रक्चर्स पे आइए। पॉलीहेड्रन जितने भी बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए डिजायर्ड होना चाहिए 6। ये या तो sp3d2 से बनेगा या d2sp3 से बनेगा, या तो अंदर के d यूज़ करेगा, अंदर के d यूज़ करेगा या बाहर के d यूज़ करेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा हो सकता है, आप उसको देख लेना। एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे CONH3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए ये जो L वाली पोजीशन है ये सब NH3 से एक्वायर हो जाएंगी। टेट्राहेड्रल की जब बात आती है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एग्जाम्पल आ जाता है इसका NiCO4, सेंट्रल मेटल एटम है, आयन नहीं है, निकल। ओके, स्क्वायर प्लेनर पे आइए। स्क्वायर प्लेनर की जब बात आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री कम्स आउट टू बी टेट्राहेड्रल, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस। और अगर स्क्वायर प्लेनर बन के आता है तो दैट इज DsP2, मेटल का अंदर का D यूटिलाइज हो रहा है। और इसका एग्जांपल आ सकता है आपके पास में प्लैटिनम Cl4 नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ और, जब कभी भी कोई कंपाउंड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, मान लीजिए सिल्वर का या गोल्ड का पूछा जा रहा है और आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इट लाइज अंडर कॉपर, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपका जिस तरह का भी कॉपर का आ रहा होगा वही इनका आ रहा होगा। ठीक है, सेम वे अब जैसे मैंने यहाँ सडनली प्लैटिनम लिख दिया, आपको प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर नहीं पता या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है, परेशान मत होइए। निकल को पैरामीटर मान के चलिए, जो निकल का होगा वही प्लैटिनम एंड पैलेडियम का होगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आपने बस जो n की वैल्यू है वही तो चेंज करते जाना है, बाकी n-1 और n ही चेंज होगा बस, और तो कुछ भी नहीं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे ही रहेगा जैसे ऊपर वाले एलिमेंट का है। तो निकल को पैरामीटर मान के आप प्लेटिनम एंड पैलेडियम दोनों का लिख सकते हैं। एकदम से आपको हाथ पाँव फूल जाए ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऑलवेज बाय sp3d। और जो स्क्वायर पिरामिडल है, हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप कोवलेंट कंपाउंड्स जो दूसरे वाले होते हैं उनमें अगर बात करते हैं ना, तब तो ठीक है, ये दोनों ज्योमेट्रीज अलग अलग होती हैं। यहाँ जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्री देने की बात आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि दोनों में 5 है, यहाँ लोन पेयर का तो एजेंडा ही नहीं होता, लोन पेयर को तो यहाँ पोजीशन ही नहीं देते, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में हमने वो पढ़ा था, वो यहाँ पर नहीं लागू होता है। तो दोनों का क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, दीज टू आर इंटर कन्वर्टिबल, तो इसीलिए इनका एग्जाम्पल कॉमन रहेगा। ये है FeCO5।
ये अलग अलग कंडीशन में कभी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, कभी स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो सेम FeCO5 कैन अटेन दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की दो ज्योमेट्रीज आपके पास में हैं एंड दीज टू आर इंटर कन्वर्टिबल, ध्यान रखिएगा। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर से आप ज्योमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं। फाइन, ऑक्सीडेशन नंबर पे आए। द ऑक्सीडेशन नंबर of the central atom in a complex is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom। अगर सेंट्रल एटम के साथ जितने भी लिगेंड्स लगे अटैच्ड हैं, अगर हम उन सबको एक बारी के लिए हटा दें और वो अपना अपना चार्ज लेके चले जाएं, तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम पे जितने भी चार्ज बचेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और उसको कैलकुलेट कैसे करना है आपको, जैसे ये था, कोई भी ले लेते हैं, K4FeCN6, बेस्ट तरीका है K का लिखिए, K का +1 होता है तो +1 × 4, ये तो 1 हो गया। Fe का निकालना है, x रख दिया, Cn पे -1 चार्ज होता है, साइनाइड को आप कैसे रिकलेक्ट करते हैं, Cn -1, तो -1 × 6 इज इक्वल टू, ओवरऑल बैलेंस हो जाना चाहिए, कोई नेट चार्ज नहीं आना चाहिए, 0। तो 4 + x - 6 = 0, x कम्स आउट टू बी +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू Fe इज +2। यू कैन इजीली कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, एक और टर्म आती है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। बेटा जी यहाँ पर अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि डिफाइन करने के लिए आ सकता है, आपकी डेफिनेशंस बहुत सटीक होनी ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस आउट, राइटिंग सेक्शन को भी संभालना आपका ज़रूरी है ना। कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे लिगेंड एक ही टाइप के हों, जैसे अभी मैंने ये CONH3 लिखा था, हमने देखा 6 के 6 NH3 हैं, सारे सेम हैं, होमोलेप्टिक कहलाएगा। अगर लिगेंड अलग अलग हो जाते हैं, मोर देन वन टाइप, तो इट विल बी हेटेरोलेप्टिक। ये रहा एग्जाम्पल हेटेरोलेप्टिक का, तो वो आप पढ़ लीजिए यहाँ से। फाइन, कम टू द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए तो पूरे रूल्स दिए हुए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर नोमेनक्लेचर के तो सारे रूल्स आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लिखना आना चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड से आपको यहाँ पर नेम लिखना भी आना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ एक चीज़ हेल्प करना चाहूँगी मैं, क्योंकि कई बार एक दफ़ा क्या होता है कि बच्चे रूल्स भूल जाते हैं एग्ज़ाम में लिखते वक्त ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे लिखना था, हमें तो स्टेप याद नहीं है। ऐसा कभी भी अगर हो जाए ना, तो आप इस काम के लिए जब आप स्टेप्स भूलने की टेंडेंसी रखते हैं, तो आप कोई भी एक सिंपल एग्जाम्पल को याद रखिए। जैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि एक अगर आपने ये ले लिया ऐसा, और एक और अपनी विश से कोई सा भी ले लेना, मैं तो आपको एक समझा रही हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो इसका एक तो मैंने स्ट्रक्चर भी याद रखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में मैं इसका नाम भी याद रखूँगी, वो होगा पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, हेक्सासाइनाइडो फेरेट और 2। अगर मैंने ये कंपाउंड क्योंकि लैब में भी यूज़ करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, और इसका नाम भी मुझे पता होना चाहिए, तो सिंपलेस्ट है। अगर मैंने ये दोनों चीज़ें याद की हुई हैं और एग्ज़ाम में मैं रूल्स भूल गई हूँ, तो फॉर्मूला लिखते वक्त मुझे याद रखना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जो लिगेंड्स आएंगे, अगर लिगेंड्स पॉलीएटॉमिक हैं, पॉलीएटॉमिक मतलब दे कैरी मोर देन वन एटम, जैसे ये देख सकते हैं आप CN, कार्बन और नाइट्रोजन 2 एटम हैं, तो पॉलीएटॉमिक को हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डालिए, इजंट इट। अगर सिंगल होता है, Cl होता है, तो Cl को बाहर लिख देते हम, Cl में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा एटम आते हैं तो आप उन्हें हमेशा ब्रैकेट में डालिए और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका नीचे लिख दीजिए, ठीक है। ये पूरी चीज़ आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज हो गई। जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन बाहर दिया जाता है, और पॉजिटिव वाला पार्ट पहले हमेशा लिखा जाता है ये तो, और नेगेटिव वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है, तो आप हमेशा याद रख सकते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पॉजिटिव वाला हमेशा काउंटर आयन ही होगा, पॉजिटिव वाला आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे CrH2O5Cl, और यहाँ 2+ होता तो मैं 2Cl ले रही हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड आ गया, तो आप देखिए काउंटर आयन तो पीछे भी आ गया। पहले वाला जो भी लिखते हैं ना हम, राइटिंग जब फॉर्मूला होता है तो राइटिंग में हमेशा पहले वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, तो आपकी बात हमेशा पॉजिटिव वाले को पहले नाम दिया जाता है। पहले वाले फर्स्ट वाले केस में पोटेशियम था तो पोटेशियम का नाम दिया, आपकी बार ये है तो आपको इसको नाम देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए Cl मोनोएटॉमिक था, मैंने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं किया है, वाटर पॉलीएटॉमिक था, मैंने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें आपको जब मेटल और इसमें लिगेंड्स में चॉइस आती है तो आप पहले लिगेंड्स का नाम देते हैं। देखिए ऊपर भी हेक्सासाइनाइडो लिया हुआ था, ऐसे ही आपको इनके लिगेंड्स के नाम पहले लिखने होंगे। लिगेंड आपका अगर नेगेटिवली चार्ज है तो O में एंड होगा, क्लोराइड होता है वैसे, पर O में एंड करने के लिए क्लोराइडो हो जाएगा। वाटर जो न्यूट्रल है इसका एक्वा यूज़ किया जाता है, तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक पैटर्न में लीजिए, A पहले आता है,
सी बाद में आता है तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब इसमें क्या किया मैंने, क्रोमियम लिखा है जब मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव वाला पार्ट था। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, तो आप मेटल का नाम हमेशा 8 में एंड करेंगे। पहले आ रहा है बिना 8 के एंड करेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। तो ऐसे करके 2 एग्जाम्पल्स को याद रखिए, उस समय भूल जाए, पहले इन एग्जाम्पल्स को स्टडी कीजिए, फिर आप अपना जो भी दिया हुआ है पूछा जा रहा है उसका आंसर लिख दें, इज़न्ट इट। सो मतलब एटलीस्ट गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। तो कभी भी अगर पूरे रूल्स रेगुलेशंस आपको एक साथ एक के बाद एक स्टेप वाइज याद नहीं है, तो आप अपनी मर्जी के कोई 2 तरीके के डिफरेंट कंपाउंड्स को लेकर के स्टडी कर सकते हो। एक ये बिस का इस्तेमाल ज़रूर याद रख लेना, वो यहाँ से ले लेना, ठीक है। बिस यूज़ करते हैं जब अंदर में डाई ट्राई दोबारा आ रहा होता है, तो बाहर में एक बार और रिपीटिशन हो रहा होता है। ये ट्राई अंदर आ रहा था तो बाहर में एक दूसरा टेक्नोलॉजी यूज़ किया नंबरिंग का, वो है बिस, है ना। तो बिस ट्रेस आप यूज़ कर सकते हो। कुछ हेल्प मैं दे देती हूँ यहाँ पे कि नेमिंग ऑफ लिगेंड्स जो है, नेम्स ऑफ लिगेंड्स में कुछ लिगेंड्स बता देती हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में सीरियस में पूछे नहीं जाएंगे, पर यहाँ जो बता रही हूँ वो सारे के सारे कॉमनली यूज्ड हैं इनको, तो आप इनका नाम याद रखिएगा जो आपको पता होनी चाहिए। Cl नेगेटिव आ जाए क्लोराइडो लिख दीजिए, ठीक है। देन Br नेगेटिव आई नेगेटिव आ जाएंगे। H नेगेटिव आ रखा है हाइड्राइडो हो जाएगा, हाइड्राइड होता है ना तो हाइड्राइडो हो जाएगा। देन OH हाइड्रोक्सिल होता है हाइड्रोक्सो हो जाएगा, ओके। नेगेटिव है इसलिए O में एंड हो रहा है। NO2 आता है नाइट्राइटो। अच्छा ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो इसमें आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कैपिटल से बताना पड़ेगा कि नाइट्राइटो वाया N। अगर ये ONO होता तो आप क्या लिखते, नाइट्राइटो O कैपिटल्स में, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है। देन आपका Cn नेगेटिव आता है साइनाइडो लिख दीजिए, साइनाइड होता है पर O में एंड हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा, इज़न्ट इट। ऐसे ही जैसे एक ग्लाइसिन का बन के आता है, ग्लाइसिन में मैंने COOH की जगह CO नेगेटिव लिख दिया, तो ये अब हो जाएगा ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिनेटो, ओके। हालांकि ये वाला पूछते हैं, ये कॉमन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला आ गया, यहाँ कॉमन वाले ले रहे हैं हम। ये हो जाएगा कार्बोनेटो। सल्फेट होता है सल्फेटो। SCN थायोसाइनेटो। थायो क्यों लिया, क्योंकि S से लिंक्ड है। अगर ये NCS होता तो आप क्या करते, आइसोथायोसाइनेटो। ये तो नेगेटिव वालों का है, कुछ एक पॉजिटिव और न्यूट्रल भी आते हैं तो उनका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं पॉजिटिव के कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे NO+ हो सकता है, NO2+ हो सकता है, इवन आपका हाइड्रोजीन से बन सकता है, ये बन सकता है ना, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोसोनियम, एंड ये होता है आपका नाइट्रोनियम। ये नाइट्रोसो या नाइट्रो होता है इसीलिए नाइट्रोनियम आ रहा है, ओके। ईएम में एंड होंगे ये सारे सारे। ये हाइड्रोजीनियम, अच्छा इसमें ना कई दफ़ा देखो, अभी ये छोटी सी चीज़ है ना, कुछ बच्चे मुझे ये कंप्लेन करते थे कि मैम ये याद नहीं होता कि NO का नाइट्रोसो होना चाहिए या नीचे वाले का नाइट्रोसो होना चाहिए। अगर कभी भूलना हो ना तो इसके लिए कुछ अपने, वैसे तो आप खुद अपने कुछ कोडिंग बना सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हेल्प मैं भी कर सकती हूँ, वो ये है कि छोटे के साथ बड़ा नाम नाइट्रोसोनियम, बड़े के साथ छोटा नाम, तो ऐसा करके काउंट करके, मतलब आपके ऊपर है आप कैसी चीज़ों को ईजी बना सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ। फ्यू न्यूट्रल ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, तो न्यूट्रल का क्या नाम होता है, वाटर होता है तो एक्वा देते हैं इसको। NH3 होता है तो अमीन देते हैं। हाँ कभी अगर आपको ये लगे ना कि टेट्रा अमीन आ रहा है तो प्लीज़ टेट्रा का A भी लिखें, अमीन का A भी लिखें, है ना, तो AA MM ऐसे आ जाएगा, ये ध्यान रखना, उड़ाना मत। CO कार्बोनाइल। NO, अब ये NO डिफरेंट है, ये NO+ नहीं है, NO+ नाइट्रोसोनियम था, ये नाइट्रोसिल होगा, ठीक है। और ऐसे ही C5H5N pyridine, PY से भी नाम दिया जाता है, ओके। तो आप ये देख लेना, इनको यूज़ करके IUPAC नेम कर सकते हैं। और IUPAC नेम के लिए प्लीज़ ये सारे एग्जांपल्स ज़रूर देख करके जाएं, ये देख लें और ये थर्ड वाला और देखें, क्योंकि थर्ड वाले में आपका
कॉम्प्लेक्स टाइप का है जिसमें आपका काउंटर आयन वगैरह नहीं है, दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़ हैं जैसे ये भी और ये भी है ना, तो इनमें से जो पहले दिया उसका नाम पहले लिखो, जो बाद में दिया उसका नाम बाद में लिखो, क्योंकि वो नेगेटिव वाला है। पहले वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसमें सिल्वर लिखा हुआ है, लेकिन पीछे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, आर्जेंटेट में आ गया। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे देना। और ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको सबको प्लीज़ गो थ्रू, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इनको कर लें और सॉल्व कर लें नेक्स्ट वाले भी। नेक्स्ट पेज पे जो दिए हुए हैं इंटेक्स क्वेश्चंस ये देख लेना। अच्छा, इसी के ऊपर बेस 2019 में अलग अलग सेट में दो IUPAC नोमेनक्लेचर का आया था। एक में था हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, आपको इसका फॉर्मूला लिखना था। और एक सेट में दिया हुआ था ये वाला, पोटेशियम की जगह Na लगा दिया था उन्होंने। और एक तीसरे में था ये वाला, ये दोनों के दोनों 2019 के, उसमें NH3Cl, तो एक Cl को अंदर ले गए थे, तो ये थोड़ा सा फेरबदल इसी में से हो जाता है, तो इनके लिए तैयार हैं। ठीक, आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में सभी हटा चुके हैं, तो इनको क्रॉस कर देते हैं। हम स्क्रॉल करके जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ से VBT शुरू होगा, ले लेते हैं आगे। VBT, चलो जल्दी चलो। ऑल दिस आइसोमेरिज्म इज गोइंग ऑन, तो ये तो डिडक्ट कर दिया है आपके कोर्स में से। VBT पे चलते हैं, ये रहा VBT, है ना। 4 थ्योरीज हैं इनको समझाने के लिए, इनमें बॉन्डिंग किस तरीके की होती है वो समझाने के लिए, लेकिन हमारे पास में सिर्फ VBT एंड CFT आएगी, तो पहले लेते हैं VBT टोटली एजम्पशंस पे बेस्ड है, हाइपोथेटिकल है। आप एक चीज़ बताइए, आप या तो ज्योमेट्री बताइए या आप उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, तो वो आपको दूसरी चीज़ समझाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर एक टोटली अननोन कंपाउंड आ जाए ना, उसको VBT सक्षम नहीं है समझाने के लिए। इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग यही है, फिर ना ज्योमेट्री अच्छे से समझाती है, ना मैग्नेटिक चीज कैरेक्टर को समझाती है, तो इसीलिए इसकी लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी करना तो है। बेसिकली यहाँ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, दिस विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इस पर थोड़ा सा सही कर लेना, प्रोवाइडेड, कौन देगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सेंट्रल मेटल आयन अपने कितने एम्प्टी ऑर्बिटल दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है लिगेंड को वेलकम करने के लिए, उतने ही लिगेंड आएंगे और उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज कर लेंगे। देन मेटल आयन यूजेस इट्स, अब वो कौन कौन से यूज़ करेगा, अगर अंदर का D यूज़ कर रहा है तो N-1D ये यूज़ कर सकता है, बाहर का NS और NP ये सेट यूज़ कर सकता है, या अगर इनर ऑर्बिटल नहीं बन रहा, ये बन रहा है तब तो इनर है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिगेंड ये पोजीशंस लेगा। लेकिन अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो यूज़ करेगा इसका सेंट्रल मेटल आयन का NS, NP और ND, ये वाला सेट, ये ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा फॉर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये ज्योमेट्रीज की बात और हाइब्रिडाइजेशन की ऑलरेडी कर ली है, पॉलीहेड्रन जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बता ही दिया था। VBT के मेन पोस्टुलेट बता रही हूँ मैं आपको समअप करके। थर्ड पॉइंट है इसका कि इफ मेटल आयन कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास में है तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और नहीं है डायमैग्नेटिक हो जाएगा, वैसे वर्सा कर लेना इसका, ठीक है। और VBT ने क्या कहा था कि इफ इट यूजेस, सेंट्रल मेटल आयन के लिए इट लगा रही हूँ, ठीक है, ध्यान देगा ना, इफ इट यूजेस इनर ऑर्बिटल्स, जैसे कि ऊपर मैंने अभी बताया है सेकेंड पॉइंट में, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स low spin complexes will be obtained.
लो स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब हुआ, पेयरिंग हो जाएगी, सीधी सी बात है। पेयरिंग करा देना, अंदर ही अंदर सिकुड़ जाएंगे, तभी वो अंदर के डी खाली कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को स्प्रेड ना करना हुंस रूल के अकॉर्डिंग, यानी उन्हें अंदर में ले जा करके पेयर अप करवा देना, ठीक है। एल्स व्हाट विल हैपन, हाई स्पिन। हाई स्पिन किस में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इफ इट इज यूटिलाइजिंग आउटर ऑर्बिटल्स तो वो फॉर्म करेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो बेसिकली यही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको स्टडी करने होंगे। इसको स्टडी आप कैसे करेंगे, पार्ट्स में कर लेना। फर्स्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो आपके कोर्स में है वो बता रही हूँ मैं, 5 वाला आपके कोर्स में नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जब 6 की बात आएगी तो 6 में आप पहला पार्ट आएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनको पार्ट्स में करके पढ़ लीजिए। आउटर वाले अगर यूटिलाइज होंगे तो हमेशा ज़्यादातर टेंड टू बी पैरामैग्नेटिक, यूजुअली है ये, यूजुअली पैरामैग्नेटिक होते हैं वो सारे के सारे। इसके लिए एग्जांपल अगर लेना है आप, एक COF6 का बना के देख लें अपने आप, यहाँ पे भी दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट वाला नीचे में ये है, नीचे COF6 का, तो इसको पढ़ लें बढ़िया से, क्योंकि ये कई बार ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ अलग से स्पेसिफाई कर रही हूँ। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बनते हैं, तो यूजुअली दे कम आउट टू बी, यूजुअली वंस अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट, हमेशा नहीं होंगे, एक आध जगह पे फ्लॉ भी आ जाता है। तो यूजुअली दिस टेंड टू बी डायमैग्नेटिक, और मैं बेटर है कि दूसरा लिख ही देती हूँ, और या तो डायमैग्नेटिक या रिड्यूस्ड पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा, तो वो बॉल रिमेन्स इन योर कोट ओनली, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है ना। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये रहा सामने ही दिया हुआ है CONH3 वाला, तो यही वाला अच्छे से तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 बता दिया, और भी थोड़ा सा एक एजेंडा और ले लेते हैं यहाँ पे इनका सबका। जैसे कंपैरेटिव अकाउंट ले रही हूँ मैं, एक NiCO4 का है, ये होता है डायमैग्नेटिक, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इनको ट्राई कर लेना, ये जो मैं जितने भी लिख रही हूँ इनको सबको आप VBT के बेसिस पे ट्राई करके चलें, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितने भी 10 ईयर्स के पेपर्स जो पुराने हैं उनमें जो पूछे गए हैं रिपीटेडली, मैं आपको यहाँ पे वो बता रही हूँ। दिस इज़ डायमैग्नेटिक, इनके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, आपसे थ्योरेटिकल एक लंबा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क का, तो एटलीस्ट इनको आप प्रिपेयर कर लें, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन DsP2 होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा ज्योमेट्री आपका। यहाँ पे DsP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। तो देखते रहें, ये कोशिश करें इनका सबका बना करके। NiCl4 को भी ट्राई कर लें, ये पैरामैग्नेटिक होता है, sp3 होता है, तो ऑफकोर्स टेट्राहेड्रल होने वाला है। और एग्जाम्पल जो आपको ट्राई करने हैं वो हैं जो पूछे गए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बार में, किसी ईयर में ज़रूर पूछे गए हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, रिपीटेडली आस्क्ड, है ना। ये डायमैग्नेटिक होता है और साथ में D2sp3 यूज़ करेगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। और एक ले लें आप CrNH3 6, ये वाला एग्जाम्पल ले लें, तो ये पैरामैग्नेटिक बन के आता है, ये तो हटा देना एरो, पैरामैग्नेटिक है, और ये D2sp3 ही यूटिलाइज करेगा, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फाइन। COF6 का जो है ये तो अभी अभी रिसेंटली 2019 में पूछा गया है, ये का ये इसका VBT के अकॉर्डिंग VBT अप्रोच लेकर के आपको समझाने के लिए कहा था। आप पूरा ये काम करेंगे, पहले नॉर्मल मेटल का लिखिए, फिर आयनिक का लिखिए, फिर उसके हाइब्रिडाइज वाला लिखिए, और फिर ऑर्बिटल बनाते हुए आप दिखा दीजिए। तो पूरे स्टेप्स आपको दिखाने ज़रूरी है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसीलिए आप पूरे प्रॉपर तरीके से करिएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी 2 तरीके के होंगे, एक आपको पढ़ने होंगे sp3, एक होगा DsP2। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा, ये होगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ज्योमेट्री क्योंकि इसी से डिसाइड होगी। इनकेस टेट्राहेड्रल है तो आपके कुछ एग्जांपल्स अभी भी ऊपर भी बताए थे मैंने, निकल के आपको बताए हैं, लेकिन मैं और एक्स्ट्रा वाले भी लिख देती हूँ। ZnNH3 2+, ये टेट्राहेड्रल आता है निकल के, और मैंने बताया है, तो मैं
निकल के अलावा वाले लिख रही हूँ यहाँ पे CuCN4 2 नेगेटिव। इन सबको एटलीस्ट ये सारे एग्जांपल्स ट्राई कर लेंगे ना, तो उसके बाद कुछ भी आपका अनवेल्ड नहीं रह जाता है। तो आप आराम से इतने को प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत बूस्टअप हो जाएगा। कम अप टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वंस अगेन इसको तो बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है कुछ भी नहीं, बस इतना है कि आपने अगर वीबीटी का अप्रोच देखा है तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि क्या सेंट्रल मेटल आयन अगर वो अपने श्रिंक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टू फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में क्या उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है? अगर बचता है तो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन अगर नहीं बचता, सारे पेयर्ड अप हैं, डायमैग्नेटिक होगा। बस इतना सा ही देखना है। लेकिन इसी चीज़ को आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे यहाँ जो लाइंस दी है ना, इनको पढ़ना कि पैरामैग्नेटिक बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक होगा वो बेस्ट पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, और जिसके में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें रिड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर लाइंस बता देती हूँ क्या क्या पढ़ के जानी है। यहाँ से आपने ये पूरा एक बार रीडिंग मारनी है, आप यहाँ से भी ले लेना, ये पूरा रीडिंग करिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स तक का। और फिर उसके बाद में आप ले लीजिए, इधर में आ जाइए, ये वाली लाइंस को लीजिए, आप पढ़ लीजिए इतना, और फिर ये आउटर ऑर्बिटल वाली ये जो है ये लाइंस आप एक बार पढ़ लीजिए। और क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे वो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ये है कि अमंग द फॉलोइंग, ऐसे करके MCQ में इसको कैसे डाला जा सकता है। फॉलोइंग आयंस, द वन विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज, अब मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा किसका होगा? जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही चीज़ तो आपको देखनी होगी, और इसके लिए आपको वीबीटी की अप्रोच लेनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, वो कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करेगा। सो FeH2O होल 6 2+, देन कम्स ZnH2O होल 6 2+। अगर इन तीनों में पूछा जाता है तो क्लियर कट मुझे तो दिखाई दे रहा है, इसमें 26 होता है, Fe2+ में D6 हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो क्लियरली मतलब आप तो बना के देखिए, लेकिन बेसिकली यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास में आ सकता है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, कभी पूछा जाता है कि ऑफ एनी कंपाउंड इज सो एंड सो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? √n × n+2 म्यू है ये स्पिन ऑनली के लिए, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट आती है बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो ये जो n है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे Fe का इस वाले का कंपाउंड का निकालना था, 4 थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 4+2 6 4 24, इसका रूट निकाल लीजिए, जितना आता है उतना बोर मैग्नेटॉन। अब इसमें भी मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, ये जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, जो म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है, किसी के लिए भी अगर जैसे इसकी मैं कह सकती हूँ कि 4 पॉइंट समथिंग में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है ना, ये आपको एक आइडिया देता है रफली, पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल से जस्ट पहले वाले नंबर का बता रही हूँ मैं, वो आपको एक रफली आइडिया देता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप टैली करके देख लीजिए, ऑब्जर्व्ड में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही बोर मैग्नेटॉन का फर्स्ट वाला नंबर। ओके, तो हर बारी अगर कभी आपको कभी म्यू की वैल्यू दी हो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हो, और आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड में कितने, इस सेंट्रल मेटल आयन के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्लीज़ डोंट कैलकुलेट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप बोर मैग्नेटॉन में जितना भी वैल्यू दिया हुआ है उसका जो डेसिमल से पहले का नंबर है वही वाला बता दें। ओके, एक और क्वेश्चन, नाउ एक्सप्लेन वाई, जैसे ये वाला टाइप का आ सकता है ना, क्या है अब इसमें, वो कह रहे हैं कि Fe का जो कंपाउंड है FeH2O, मैंने यहीं से एग्जांपल्स निकाले हैं सारे के सारे, FeH2O होल 6 3+, है ना, ये जो है हैज़ मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ 5.92 बोर मैग्नेटॉन, whereas Fe, ये Fe थोड़ा अजीब सा हो गया, FeCN होल 6 ये वाला अगर मैं ले लूँ हैज़ 1.74 bm ओनली। क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा और इसमें
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इसीलिए ये वैल्यू है, तो इसको समझाना सीख लीजिए। तो ऐसे करके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं जल्दी से। ये रहा एक एग्जांपल, ये देख लीजिए एमएन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5.9 है इसका, तो ऑब्वियसली 5। ये रहा, कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, वही आता है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे थोड़ी सी नज़र मार लीजिए। कुछ भी नहीं बताता, ये तो पूरी तरह से एजम्पशंस पे बेस्ड है ना। ये आपको ज्योमेट्री नहीं बताता, आपको टेट्राहेड्रल कब होगा और स्क्वायर प्लेनर कब होगा ये आइडिया नहीं देता, लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बताता, मैग्नेटिक डेटा के बारे में कुछ नहीं बताता, कलर भी नहीं समझाता है, तो कुछ भी नहीं समझाता है, कुल मिला के फालतू है, बेकार है। चलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत सक्षम है, कैपेबल है, इसके हालांकि इसकी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन ये बेस्ट है, बहुत कैपेबल है ये। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, ये पूरा पढ़ ही लें, मैं तो यहाँ कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ पे पूरा ही रीड, आई बेटर से कि ये पूरा एक बार पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस की तरह से या पॉइंट डायपोल्स की तरह से लिया जाता है ना। उन्हें ये उम्मीद की जाती है कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो बीच में है और लिगेंड उसको बहुत दूर से अप्रोच कर रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं। लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे आमने सामने आने लगते हैं, रिपल्शन होता है, इसीलिए डिजेनरेसी जो है पहले लिफ्ट अप हो जाती है। ये डिजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इज लिफ्टेड अप, एंड और ज़्यादा क्लोज आएंगे तो वो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की लोकेशन ये होती हैं, तो लिगेंड इस एक्सिस से, इस एक्सिस से और इस एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो लिगेंड यहीं से तो आएगा, अलोंग द एक्सिस आ रहा है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो अलोंग द एक्सिस कर रहा है। तो ऐसे में डी, सेंट्रल मेटल आयन तो अपने डी ऑर्बिटल्स दे रहा है, तो इसके जो डी की शेप्स हैं वो 3 शेप्स होती हैं जो इन बिटवीन एक्सेस होती हैं, 2 शेप्स होती हैं जो अलोंग एक्सेस होती हैं, dx² -y² एंड dz², इजंट इट। सो जैसे ही लिगेंड क्लोज आएगा तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होंगे, जो इन बिटवीन है या जो अलोंग द एक्सेस है। हेड ऑन कोलिजन जैसे होता है तो जो यहीं पे होंगे एक्सेस पे ही, उनमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होंगे। तो मतलब ये जो 2 हैं, dx² -y² और dz², इनमें मैक्सिमम रिपल्शन होता है, और रिपल्शन मैक्सिमम होगा माने अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल यूनिवर्स में जो भी चीज़ होती है उसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है, इसीलिए स्प्लिट होकर के ये हाई एनर्जी के बन जाते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये डिजेनरेसी थी, लिफ्ट अप हो गई है, यहाँ तो सिर्फ लिफ्ट अप हुई है। ओके, फिर उसके बाद में स्प्लिट हो गई, यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ है। तो स्प्लिटिंग जो हुआ है उसमें देखिए T2G जो है ये बना है dxy dyz dxz से। ओके, और जो EG वाले में आया है, EG में है dx² -y² और dz², ये आए हैं, इनसे बना है। क्लियर? हाँ जी, इसमें ये जो स्प्लिटिंग का डायग्राम है, इस डायग्राम में जब ये स्प्लिट होता है तो आप देख सकते हैं बेरी सेंटर से 2 ऊपर गए हैं और 3 नीचे गए हैं। जो नीचे गए वो 2/5 ऑफ डेल्टा ओ, डेल्टा ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी, है ना, CFSE कहते हैं इसको। तो ये जो है इसका इतना पार्ट नीचे गया है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, एंड इसको आप चाहें तो -0.4 भी लिख सकते हैं, मतलब -0.4 डेल्टा ओ है ये सब मिक्सअप हो जाता है ना। ऊपर का है प्लस क्योंकि पॉजिटिव में गया है, तो 0.6 डेल्टा ओ है ये। आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप CFSE देखेंगे टेट्राहीड्रल के लिए, तो दैट कम्स आउट टू बी 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आपका ऑक्टाहेड्रल का है उसका 4/9 पार्ट टेट्राहेड्रल का होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, CFSE ऑफ octahedral this type of complex is 18,000 centimeter inverse. Now you have to calculate for the टेट्राहेड्रल वन। आप क्या करेंगे, 4/9 करके करेंगे, तो 4/9 करके आंसर आता है 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बी प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। ये CBSE में भी आ सकते हैं, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आ सकते हैं, तो नीट के लिए, JEE के लिए भी आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें इस चीज़ का। ओके, नाउ दिस एनर्जी गैप, ये जो CFSE है, ये जो E गैप है, एनर्जी गैप है, इसके लिए ऊपर लिख रही हूँ मैं, एनर्जी गैप, ये गायब हो गया। एनर्जी गैप इज इन्फ्लुएंस्ड, किस किस का असर पड़ेगा इस एनर्जी गैप पे, वो है बाय नेचर ऑफ लिगेंड्स
एक लिगेंड्स का नेचर क्यों क्या है, क्योंकि CFT आपको यही समझाती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयंस, उस पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट वही कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख लेना इन सब चीज़ों से अफेक्ट होता है ई गैप। जो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक आइडिया ले लें। इसमें बहुत कुछ जो ये लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं इन सब का याद रखिएगा, एक्सेप्ट एक ही एक्सेप्शनल केस है ऑक्सलेट आयन, उसको प्लीज़ ध्यान रखना। ऑक्सलेट आयन अंडरगोज पेयरिंग, ये प्रमोट्स पेयरिंग, इसकी वजह से पेयरिंग होता है। हालांकि ये वाटर से पहले है, वरना वाटर तक के जो है हम पैरामीटर लेते हैं, आपके लेवल पे यहीं तक आएंगे, तो आगे हायर क्लासेस में वाटर भी थोड़ा सा डिलेमा में होता है, लेकिन यहाँ जो इस लेवल पे आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर तक के, लेफ्ट से लेकर के वाटर तक के जितने भी हैं एक्सेप्ट दिस वन, ये सब जो हैं ये इनके लिए डेल्टा ओ इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पी है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, क्योंकि पेयरिंग के वक्त रिपल्शंस होते हैं तो उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी दे करके पेयरिंग प्रमोट करना पड़ता है। तो डेल्टा ओ इज़ लेस देन पेयरिंग, तो जो लेस होता है ना वो प्रमोट होता है, मतलब यहाँ पर ये स्प्लिटिंग कम होगी, इसीलिए सिंगल फिल होंगे। स्प्लिटिंग कम होगी ना, ये 3 और ये 2, बहुत कम एनर्जी होगी, इनकी गैप होगा इनके बीच में, तो आराम से चौथा इलेक्ट्रॉन D4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। ये 3 तो नीचे जाएंगे, फोर्थ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल फिलिंग होगी, सब पांचों को भरेंगे, फिर जाके पेयरिंग प्रमोट करेंगे आप, क्योंकि पेयरिंग डिमांड्स मोर एनर्जी। ओके, देन साथ में और क्या होगा, यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाला, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे ये सारे के सारे। क्लियर। वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स का नेचर वीक फील्ड है, ये सारे जो हैं ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड माने इनका CFSE लो है, ये गैप जो है ये लो है, और लो गैप होते ही यहाँ पे आपका क्या चलेगा, सिंगल फिलिंग चलेगा। ये बाद वाले जितने भी हैं ये सारे NH3 CN CO वाले कॉम्प्लेक्सेस आपसे पूछे जाएंगे इन 3 लिगेंड्स के कंपैरिजन में, मतलब EN के EDTA वाले बहुत कम आते हैं, बेसिकली इन 3 के आपके लेवल पे पूछे जाते हैं। तो इनमें आप क्या करेंगे, डेल्टा O इज़ मोर देन P, तो P कम है ना, अब पेयरिंग होने लग जाएगा, पहले पेयरिंग करेंगे आप, फिर जाके अगर बचेंगे इलेक्ट्रॉन तो ऊपर भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पेयरिंग प्रमोट होगी, एंड ये जो बनाएंगे वो होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि नीचे ही पेयरिंग हो रही है ना, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड माने CFSE बहुत हाई है, लो स्पिन है इनमें, और लो स्पिन या आप वीक स्पिन भी कह सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक स्पिन वाले हो गए ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको एक आदत ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, एंड दिस ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ, ये आपको दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख लेना आप। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का और मैं आपको आइडिया बताती हूँ कलर के लिए, जब यहाँ बात चल रही है तो हम कलर की भी बात कर लेते हैं, कलर कैसे डिसाइड होगा। अब जैसे मान लीजिए डेल्टा O इज़ लेस देन P, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम है, एनर्जी गैप कम है पेयरिंग से, और कुछ सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो जब ये CFSE लो है, ये एनर्जी लो है, तो ये एनर्जी जो वेवलेंथ है आपका प्योर वाला जो कलर का पैटर्न है VIBGYOR, ये ऑर्डर है आपका इंक्रीज इन वेवलेंथ का। ओके, ये है एनर्जी, आपको पता है E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, इजंट इट। तो H और C कांस्टेंट है, अगर मैं E और लेमडा का रिलेशन देखूं तो द ग्रेटर द एनर्जी द लेसर द वेवलेंथ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनर्जी लो है, द लोअर द एनर्जी द हायर द वेवलेंथ, मतलब जिनके लिए CFSE लो होगी वो हायर वेवलेंथ वाला, समवेयर हियर दे विल एब्जॉर्ब द कलर। तो कलर एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन CFSE, ठीक है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे CONH3 6, एक मैं ये कंपाउंड ले रही हूँ, एक ले लेते हैं हम COH2O6, और ऐसे ही कोबाल्ट का एक और कंपेयर कर लेते हैं COCN6। ठीक है, अब सबसे पहले आप इन लिगेंड्स की लोकेशन देखिए, CN सबसे ज़्यादा बाहर में है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी की स्प्लिटिंग कराएगा, फिर कम स्प्लिटिंग होगी NH3 की, फिर और कम होगी
वाटर की। इनफैक्ट इसको ऑर्डर को मैं वैसे ही लिखती तो ज़्यादा अच्छा था, वाटर को ऊपर में लिखती तो ज़्यादा अच्छा रहता आपके लिए ना। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ होगी, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ लैम्डा है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप ये है, ई गैप मैक्सिमम होता है, मतलब सी एफ एस सी यहाँ पे मैक्सिमम है सी एन के लिए। आप देख सकते हैं ये रहा सी एन सबसे एंड में राइट हैंड साइड पे आ रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस है, तो मतलब डेल्टा ओ इसके लिए सबसे ज़्यादा है, डेल्टा ओ मैक्सिमम है, डेल्टा ओ मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब वेवलेंथ सबसे छोटी होनी चाहिए। वेवलेंथ छोटी कहाँ है, वॉयलेट में, तो कलर जो एब्जॉर्ब होगी वेवलेंथ वो होगी वॉयलेट, ठीक है। देन NH3 थोड़ा सा इससे कम है, डेल्टा ओ है ना, मॉडरेट है इसका, ये डेल्टा ओ मॉडरेट है, तो इस केस में जो है वो बी से थोड़ा सा इधर बी की तरफ आएगी, ब्लू, सॉरी ऊपर लिखना था ब्लू, ठीक है। वाटर जो है वो तो वीक फील्ड में आ गया, वाटर वीक फील्ड में होने की वजह से कम डेल्टा ओ होती है, डेल्टा ओ लीस्ट है इन तीनों में से, इसकी लीस्ट है माने वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वाली होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण ये आता है ऑरेंज, ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपकी आईज परसीव करती हैं, है ना। ये वेवलेंथ अगर गायब हो जाए विबग्योर में से, तो जो बची हुई एनर्जी है वो मिक्स होकर के कौन सा कलर देती हैं, वो कलर आपकी आईज परसीव करती है। तो कलर व्यूड या ऑब्जर्व जो होगा ना वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको नज़र आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर कभी भी आइडिया लेना है तो एक कलर व्हील को याद रखिए आप हमेशा, यहाँ से शुरू कीजिए, आई को उड़ा दीजिए, VBGYOR, इंडिगो इज मोर और लेस सिमिलर टू समवेयर वायलेट एंड ब्लू, तो हमने आई को उड़ा दिया है, ठीक है। जो वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपीयर होगा येलो, तो वॉयलेट वाला अपीयर्स येलो, ठीक है। ऑरेंज जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपीयर होगा ब्लू, तो अपीयरेंस इसकी ब्लू हो जाएगी, और जो ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपीयर होगा ऑरेंज। ऐसे करके आप कलर व्हील से आइडिया ले सकते हैं, है ना। जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, ये 2013 का क्वेश्चन है ना, ये है, एक तो था व्हाट इज़ CFSE, आपको ये समझाना था, देन था ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन electronic configuration of D4 when given है ना, when फर्स्ट पार्ट तो आपको दिया हुआ है डेल्टा ओ इज़ ग्रेटर देन पी, और दूसरा पार्ट दिया हुआ है डेल्टा ओ इज़ लेस देन पी। जब डेल्टा ओ लेस देन पी है तो पेयरिंग मत कराइए, जब पेयरिंग ज़्यादा एनर्जी मांग रही है तो पेयरिंग मत कराइए, सिंगल सिंगल भर दीजिए। मतलब इस वाले केस में आपके पास आना चाहिए T2G3 और EG1। अच्छा मैंने बताया नहीं ना, D4 है ना, D4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 चले गए T2G में और 1 चला गया EG में। पर जब आपका ये डेल्टा ओ ज़्यादा है, पेयरिंग की एनर्जी कम है, तो पेयरिंग पहले प्रमोट कर दीजिए, मतलब T2G4 ही हो गए, EG में कोई गया ही नहीं। ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना होगा, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो है, उसका भी ध्यान दीजिए, देखिए इस टाइप के बन सकते हैं कि CFSE फॉर हाई स्पिन, ये H है, हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज़, आपको यहाँ पे जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है D4 की, तो इज़ व्हाट, ऑप्शंस बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ए में मान लीजिए दे दिया आपको -1.8 डेल्टा ओ, बी में आपको दे दिया -1.6 डेल्टा ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी कुछ दे दिया है ना, सी में आपको दे दिया -1.2 डेल्टा ओ, एंड डी में आपको दे रहे हैं -0.6 डेल्टा ओ। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको जो यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है वो है, एक तो हाई स्पिन है, हाई स्पिन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सिंगल 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 जाएंगे, मतलब पहले तो आप इसको समझिए, हाई स्पिन D4 अगर आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, इज़न्ट इट। और जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है वो है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके भरे जा रहे हैं वो लेने हैं आपको ना। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ T2G में मेरे पास कितने हैं
3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं जनरल पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, -0.4, 0.4 वो है जो T2G नीचे गए हैं, मैंने आपको -0.4 डेल्टा O बताया था, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ठीक है, प्लस ऊपर में जो गए हाई एनर्जी के वो प्लस में दिखा रहे हैं 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने गए 3, प्लस 0.6 में कितना करेंगे, EG में गया 1, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो दिस कम्स आउट टू बी -0.6, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए हमारा डी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके पास काम आएगा, है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से देख ली। और अब हमारे पास में आगे क्या है, CFSE का तो यहाँ बता दिया। हाँ, टेट्राहेड्रल का इसका उल्टा हो जाएगा, वो भी देख लें एक बार। ये टेट्राहेड्रल का, बस इसमें ध्यान रखिएगा, dx² -y² और dz² ये नीचे आए हैं, जी गायब हो गया। टेट्राहेड्रल के लिए जी नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ ई है। ये देखिए, ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा O एंड डेल्टा T, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल एंड CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है, इंटरकन्वर्टिबल है। हो सकता है कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाए कि आपको डेल्टा O दी हो और आपसे डेल्टा T निकलवाएं, या डेल्टा T दी हो एंड डेल्टा O निकलवाएं। तो ध्यान रखिएगा, कलर व्हील मैंने आपको बता ही दी है, कलर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख लेना। इधर में जो पढ़ना है वो है ये दिस मीन्स से लेकर के पूरा, इसको तो पढ़ जाएं, ये पूरा पढ़ लें, है ना। बाकी बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनर्जी जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी ना, वो डिसाइड होगी डेल्टा O से। CFSE अगर हाई है तो मतलब एनर्जी अगर हाई है तो कम वेवलेंथ ही लेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था वो आप ले लेना। जैसे फिर भी एक टिप और लिख देती हूँ यहाँ, क्योंकि अगर भूल गए हो, जैसे व्हेन CN इज द लिगेंड, तो आपको समझ में आ जाएगा मैक्सिमम स्प्लिटिंग होगा, आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, मतलब डेल्टा O इज हाई, एनर्जी हाई है, ओके, ये कहना चाह रही हूँ मैं। सो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो दैट इज लेसर वेवलेंथ। जब E हाई है ना, लेसर वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब, और लेसर वेवलेंथ कौन सी है, क्लोज टू वॉयलेट, ये एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। बट व्हेन NH3 इज लिगेंड तो क्या होगा, ब्लू एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और एब्जॉर्ब्ड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताने के लिए कलर व्हील का इस्तेमाल कर लीजिए। कलर व्हील मैंने आपको भी बताई थी पिछले पेज पे, है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और हमेशा याद रखिए, कलर जो होता है वो लिगेंड के अप्रोच से ही होता है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ये हमेशा लिगेंड के आने से ही होता है, लिगेंड के बगैर कभी नहीं होता, तो वो ख्याल रखिएगा। उसके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ से ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ लें तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड CFSE डज नॉट अकर एंड हेंस सब्सटेंसेस कलरलेस। इसी पे उठा करके क्वेश्चन बन जाता है, वाई CuSO4 इज़ वाइट, इसके लिए भी तैयार रहें, बट कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट CuSO4.5H2O पेंटाहाइड्रेटेड जो है दिस इज़ ब्लू। तो ध्यान रखना, लिगेंड जो है उसी की वजह से यहाँ पे, क्योंकि वाटर लिगेंड की तरह से आ गया, ये हो गया CuH2O, Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो ये हो गया, बाहर में SO4.H2O। तो देखिए लिगेंड आ गया ना, पहले CuSO4 सिंपली आयनिक कंपाउंड है, अब लिगेंड आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बदल गया, तो जो आयनिक कंपाउंड था वो वाइट था, लेकिन लिगेंड आते ही ब्लू हो गया, तो बिकॉज द कलर इज ऑलवेज ड्यू टू लिगेंड। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ, तो उनके आंसर्स ढूंढ लेना आप, है ना, इनके लिए तैयार हैं, वो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ यहाँ पे आपको। जैसे एक लिख देती हूँ कि राइट करेक्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, द वगैरह सब उड़ा रही हूँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जरूर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि वो एब्जॉर्प्शन पूछ रहे हैं या ऑब्जर्व्ड पूछ रहे हैं, इन विजिबल रीजन फॉर। अब कंपाउंड्स कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो देखो निकल का दिया हुआ NiNO2 6, एक तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको Na का ही NH3 के साथ, ठीक है, एक दिया हुआ है निकल का आपको वाटर के साथ में।
कोऑर्डिनेशन नंबर सबका सेम है, बस लिगेंड डिफर करता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए वो है CFSE ऑर्डर इज, ये आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप देख लेना। नहीं समझ में आए मेल कर दीजिए मुझे, मैं आपको यहाँ पे ऊपर में आता ही रहता है तो मेल कर दीजिए, मैं आपको ये और डिटेल में समझा दूँगी। एक्चुअली आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो तो बच्चे देखते नहीं हैं इसलिए। तो CFSE ऑर्डर जो होगा ना वो देखो ये होता है वाटर लेस देन NH3 और इससे ज़्यादा होता है NO2। ओके, तो ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, माने वेवलेंथ कौन सी होनी चाहिए, शॉर्ट, लेमडा m डिक्रीज होनी चाहिए, इजंट इट। तो इसका मतलब हुआ वेवलेंथ एब्जॉर्ब जो होगा, ऑर्डर, क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, सो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब विल बी, अब मैं बार बार ये कंपाउंड नहीं लिखती हूँ, इनके नंबर लिख देती हूँ, जैसे मैं इसको 1 लिख रही हूँ, इसको लिख रही हूँ 2, इसको लिख रही हूँ 3, तो मैं ऑर्डर बता देती हूँ आपको। 3 वाला जो है ये क्योंकि एनर्जी कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन 2, देन 1, इस तरह से है ना। तो ये आप देख लें और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ पूछ लें मुझसे। चलिए इसके बाद में आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस आप यहाँ से लर्न कर लीजिए अपना, यहाँ से पूरा है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही आपको लर्न करना है, इसमें तो कुछ और पॉसिबल भी नहीं है। ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लें श्योरली ना। तो इसमें 9.6 जो है ऐसा आपका आया था 2019 में, तो बी प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। इसके बाद में जो आपका ये जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं ये आपके हैं नहीं, और स्टेबिलिटी का थोड़ा सा ले लेते हैं लास्ट जल्दी से। इंपॉर्टेंस ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। यहाँ से सारी ये तो सब आप एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, इस पर बी प्रिपेयर फॉर 1 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे जो EDTA के बारे में पूछा जा सकता है, EDTA जो होता है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एक तो एंटीडोट है लेड पॉइजनिंग में, उसको ट्रीट करने में काम आता है, और हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट में काम आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आता है। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे करके और भी ले लेना है ना, मेडिसिन में भी होता है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। एक बार थोड़ा सा शायद हम स्टेबिलिटी का छोड़ के आए थे ना, स्टेबिलिटी नहीं दिया है, इंपॉर्टेंस डायरेक्टली है। ओके चलिए, स्टेबिलिटी का नहीं है तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आ सकता इस पर तो ना, पहले हुआ करता था अब हटा दिया है इसमें से। तो EDTA का मैंने आपको बता दिया। देन आपके यहाँ पे आ जाता है ये वाला जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हाइड्रोमेटलर्जी में काम आता है। हाइड्रोमेटलर्जी माने जब भी मेटलर्जिकल ऑपरेशन करना है, मान लीजिए गोल्ड मेरे को ओर में मिला हुआ है, मुझे गोल्ड सेपरेट करना है इम्प्योरिटीज़ में से, तो मैं गोल्ड को पानी में डिज़ोल्व करके या किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करके छान लूँ, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी, गोल्ड अलग हो जाएगा। पर क्वेश्चन यही हो रहा है ना कि गोल्ड को डिज़ोल्व कैसे करेंगे। हमेशा याद रखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के हम किसी भी मेटल को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वाटर में डिज़ोल्व करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाकर गोल्ड को डिज़ोल्व किया है तो ऐसा मेटलर्जिकल ऑपरेशन हाइड्रोमेटलर्जी कहलाता है, डिज़ोल्व करना। तो इन फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज़ डिज़ोल्व। आपका गोल्ड स्मिथ भी ऐसे ही काम करता है, एक्वारेजियम में जो डिज़ोल्व करता है ना वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के करता है। ओके, देन आपके पास में आ जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में भी काम आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनना, जैसे निकल को ये वाला कंपाउंड बनाकर इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्योरीफिकेशन में काम आ रहा है। देन उसके बाद बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी हमने स्टार्ट ही आज यहीं से किया था, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी काम आते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का है, हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है ये आयरन का है, विटामिन B12 कोबाल्ट का है, और वो पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर जो है ना इसका एंटीडोट है, मतलब साइनोकोबैलामिन है B12 का, एंड ये कोबाल्ट का बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो यहाँ से है ना। साथ में कैटलिस्ट में भी कैटेलिटिक एक्शन भी है इसका, कैटलिस्ट की तरह से भी यूज़ करा जा सकता है। तो रोडियम का एक बहुत अच्छा सा कैटलिस्ट है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता है, इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कराते वक्त यूज़ करते हैं। ओके, तो ये और एक एग्जाम्पल याद कर लेना। साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आ रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वापस से डिजोल्व करना पड़ता है इसलिए काम आ रहा है। फोटोग्राफी में जो यूज़ हो रहा है वो ये है, ये याद रखना, ये फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा है, ठीक है। EDTA का यहाँ पे भी दिया हुआ है, EDTA मेडिसिनल यूज़ अगर कहेंगे तो ये दिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। और सिस्प्लैटिन जो है ये कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है। सिस्प्लैटिन तो मैं इसको अलग से बता देती हूँ, सिस आइसोमर है ये प्लैटिन का, सिस प्लैटिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना। और सिस्प्लैटिन होता क्या है, सिस आइसोमर ऑफ
PtCl2 और NH3 होल ट्वाइस, ये सिस्प्लैटिन है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर में अगर आपने सेम साइड में सेम एटम्स को रख दिया तो वो बन जाता है सिस, है ना। तो दिस इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहें, है ना। कुछ हो तो प्लीज़ पूछ लें, मेल वेल कर लें आराम से, बैक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लें, बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही करें, इसके अलावा भी करें, मैं लिमिट नहीं दे रही हूँ, मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। आगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, तो डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस आउट इवन मोर प्रॉब्लम्स, है ना। बैक के क्वेश्चन ज़रूर करें, डिपेंड करें टोटली एनसीईआरटी पे, इधर उधर जाएंगे तो ये भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट।